Morning, ma'am. Good morning. And it's wonderful to see that our resource person has joined so well in time, so well in advance. And I welcome you. Uh, I welcome you, sir. Mahmood Akhtar Saab. I welcome you here. Thank you. Thanks a lot. Always a pleasure. Same मैम here. Same here. आपसे Always मैम a कुछ pleasure. पूछना था मैम। जी जैसे बताइए। मैम हम्म। जैसे रिलीविंग लेटर जैसे मिल गया है, जैसे मिल जाए, अगर 9 तारीख को, अगर हमें 9 तारीख तक तो हम छुट्टी पर है, जैसे अगर मान ली 10 तारीख की छुट्टी होती है कॉलेज में, तो क्या हम Right. छुट्टी के बाद ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज का, Yes, या yes, yes, yes. Relieving. This is the law. This is what the norms say, and this is what we have always been doing. Relieving means relieved at 5 p.m. today and supposed to join your host institution on the next working day. ओके ओके ओके, मतलब ये नहीं रहेगा छुट्टी है तो उसमें ब्रेक हो गया, आप तो जब 2 महीने वर्किंग। का भी छुट्टी, अगर 2 महीने की भी छुट्टी है तो आप वो 2 महीने की छुट्टी के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे. ओके. ओके मैम, थैंक यू मैम, ये So थोड़ा these कंफ्यूज। queries I will be available later. Right now, Morning. please join me in welcoming your resource person today, Mr. Syed Mahmood Akhtar, a retired IRS officer and a very experienced person, yet having great interest in English literature, also having some experience of teaching in higher education institution before joining the services. And after his superannuation also, he is very active with IDO, as we have mentioned in his introduction. This is an NGO, a society of very high profile uh, public servants and social workers who have joined hands together just to give back to the society. So Mahmood Saab is doing great work with that, and he's a very good speaker. I have worked with him earlier. He's a very good manager, and I must say, has been a great administrator. So I'm having him here in our FIP for the first time. Of course, earlier he has spoken in our courses on academic administration, but because of his experience in administration and because of his exposure abroad with leadership, today he is going to speak to you on academic leadership, dear participants. And this will, of course, as per our practice, this will be a 1 hour to a little more lecture. He will be speaking to you, and then you have your opportunity to ask questions and to have a discussion with him, which will certainly be two-way. So, Mr. Mahmood Akhtar, we are really pleased to have you here with us, and we hope that this is the beginning of a long-standing relationship between you as our resource person and us as an erstwhile HRDC and presently MMTTC, implementing these courses for all India faculty. So if you've seen our list that we had sent you along with the letter, we have participants from all subjects, from almost all states, and from different types of educational institutions, higher educational institutions. We have central universities, we have state universities, we have colleges, we have minority colleges. So a large section of people here to have a very riveting discussion with you. So thank you so much for your presence, and participants, I wish you all the very best for this session. Please enjoy, please learn, please come out enriched at the end of it. And now everybody will be on mute, and it's over to Mr. Syed Mahmood Akhtar, our resource person today. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Basi. Thank you, ma'am. It was very nice to hear those good things about myself. I don't think I deserve many of them, but it's Madam's, what should I say, camaraderie and her connectivity with us, with me, with IDO, which is so enriching, so fulfilling. I'm thankful to her for those kind words and for also to invite me to this session today in the morning. I'm equally happy to see all these bright faces. They represent the diverse India, I'm sure of it, coming from all nooks and corners of the country. हर जगह से दिख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है. And I'm sure that in the course of our session today, we will be traveling across
various pages of educational culture, educational aspirations, and educational history, cutting across not only the regions in the country, but cutting across the international boundaries also, and exploring how do these other countries, other universities go ahead with their academic leadership modules. So first of all, let me welcome you to this talk today. It's a very pleasant morning here in Delhi. I'm sure all of you must be enjoying the sun wherever you are. And let's now begin with it. So the topic given to me today is academic leadership. Now, academic leadership is a very, what should I say, not only imaginative, but a very connotative word. Because first of all, academia, and then the leadership of it. Is it okay if I go in English, or you want me to switch on to Hindi, Urdu also occasionally? What would you prefer? Bilingual, sir. Bilingual, sir. Okay, okay. तो आज का जो सब्जेक्ट है ये है कि साहब हमारे यहाँ जो एकेडमिक माहौल है उसमें हम क्या चीज की लीडरशिप दे सकते हैं, और भारत में या उसके अलग अलग विश्वविद्यालयों में कैसी ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे न सिर्फ यहाँ की आध्यात्मिक विकास हो, बल्कि एक तरह से यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज की, जो एक पहलू है कि साहब कैसे लेके आगे चलेंगे, वो भी फुलफिल होगी। तो टू माय माइंड जो मुझे सबसे ज्यादा दिखती है, जो सबसे ज्यादा क्लियर होती है, कि दो पार्ट में इसको बांटा जा सकता है प्रारंभिक तरीके से। आगे भी होगा, आगे बहुत सी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग, लेकिन to start with, let us see it in two different perspectives. The first perspective is, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको मैं पहले दर्जे पर रखता हूँ, the idea of a university. What is the idea of a university? To collaborate educationally, technologically, socially, not only with the students and the faculty, न सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ के प्राध्यापकों के साथ, यहाँ के असातिज़ा के साथ, टीचर्स के साथ, बल्कि उनके साथ भी जिसको आज के दिन सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंस देता है, दैट इज द कम्युनिटी एट लार्ज। आप जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए कार्यरत हो, जिसके लिए आप क्लासेस लेते हो, या आप प्रशासनिक तरीके से वहां सपोर्ट देते हो, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, आपको वहां के जो कम्युनिटी है आसपास की, या सोशल मीडिया के साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनका ख्याल रखना जरूरी है। तो सबसे पहले जो चीज आएगी यूनिवर्सिटी के लिए, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माइंड इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। इन दैट आइडिया विल कम द फैकल्टीज, एक से एक प्रोफेसर होंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर होंगे जो पढ़ाएंगे, जिनको अद्भुत ज्ञान होगा अपने अपने सब्जेक्टों का, और जो बताने में रुचि रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ। दूसरी चीज, रिसर्च। What is the quality of research, and to what extent can research be taken in the university roadmap? That's very important. तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा important है, the quality of education which is being delivered to the students. बच्चों को या जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियां, उनको किस तरह की तालीम दी जा रही है। क्या सिर्फ, मैं बहुत फ्रेंकली बात करता जाऊंगा इसलिए बुरा मत मानिएगा, और जहां चाहिएगा मुझे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। मेरे हिसाब से अगर आज की यूनिवर्सिटी को देखा जाए, बहुत हद तक वो डब्बे में बंद यूनिवर्सिटी, क्रिटिकल थिंकिंग का रुझान नहीं होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं देखी जाती है। बच्चों को खुद से सीखना, गिरना, पढ़ना, गलती करना और सीख करके खड़े होना, और ओरिजिनलिटी के साथ, समथिंग which they can do originally. You don't have to copy somebody. आप यूएस की यूनिवर्सिटीज को देखिए, प्लेजियरिज्म इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एजुकेशनल क्राइम which is committed there. अगर दो आर्टिकल एक दूसरे से मिल गई और फैकल्टी को पता चल गया यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सीवियर पनिशमेंट होता है। हमारे यहाँ क्या है, एक पीएचडी हुआ, उस पीएचडी से 5 पीएचडी बन गए अलग अलग। ओरिजिनलिटी कहाँ रही? मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोग नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी हैं जो बहुत ओरिजिनल काम कर रहे हैं भारत में,
अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टू नेम अ फ्यू, यहाँ एक से एक ओरिजिनल काम हो रहे हैं। लेकिन जब भी हम एकेडमिक लीडरशिप की बात करेंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो हो रहा है वो अव्वल दर्जे का, जो वहां से पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास हो, ओरिजिनल हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, और हार्ड हिटिंग और रेलिवेंट हो सोशल कॉजेस की। तो जो भी लीडरशिप होगी आपके लेवल पे होगी, वाइस चांसलर के लेवल पे होगी, प्रिंसिपल्स के लेवल पे होगी, डीन्स के लेवल पे होगी, रजिस्ट्रार के लेवल पे होगी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लेवल पे होगी, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इन चीजों को पूरी तरह से दिमाग में रखा जाए बिफोर वी सेट आउट ऑन द एजेंडा टू मेक academically efficient leadership in the university, college, whatever। ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज जो होगी, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि वहां का एक प्रशासनिक बागडोर कैसी चल रही है। तो कोई भी संस्था ले लीजिए, कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ले लीजिए, प्रशासन को बहुत न सिर्फ मजबूत होना पड़ेगा, प्रशासन को बिल्कुल एक तरह से स्ट्रॉन्ग बागडोर के साथ काम करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले डिसिप्लिन आता है, अटेंडेंस पंक्चुअलिटी आती है, टाइम पे क्लासेस आता है, तो प्रोफेसर्स का क्लास लेना आता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको आज बताता हूं, मैं 1979 से 1981 में रांची विश्वविद्यालय में MA कर रहा था, अंग्रेजी विषय में, इंग्लिश लिटरेचर। हमारे क्लासेस होते थे। उसके पहले मैं BA ऑनर्स करके निकला था वहां के एक मिशन कॉलेज से, जो बहुत प्रॉम्प्ट था, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। झारखंड के अगर कुछ लोग होंगे तो शायद जानेंगे उसको। और वहां पे पढ़ाई बड़ी एक डिसिप्लिन तरीके से की जाती थी, टीचर्स भी बड़े लगे रहते थे स्टूडेंट्स भी। तो जब मैं नया नया PG क्लास में गया तो मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ क्लास नाम की चीज ही नहीं है, बड़े फ्रीडम है, लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई प्रोफेसर आके पढ़ाते हैं, कोई आते ही नहीं, कई लोग नहीं आते, और सबके नाम के आगे PhD, डॉक्टर, ये वो, बड़ी बड़ी गोल्ड मेडल ये लगा हुआ था। तो मुझे डर भी लगता था, बिकॉज मैं ग्रेजुएट था नया नया, कि भाई इन लोगों से क्या पूछूं। लेकिन जब क्लास में आएंगे तभी तो पूछूं, जब क्लास में आएंगे ही नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं, तो क्या चीज पूछी जाएगी। तो खैर, मैं ये नहीं कहता कि वहां एक से एक प्रोफेसर थे, आते भी थे, पढ़ाते भी थे। एक दो प्रोफेसर ऐसे थे जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया कि मैं इंग्लिश में अपने सब्जेक्ट में टॉप कर सका, बाद में IRS में आ सका। और वो प्रोफेसर ऐसे थे कि जिनका क्लास मैंने कभी मिस नहीं किया। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, वो किताबों को अलग रखते थे और अपने फ्लो में पढ़ाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो T.S. एलियट के दुनिया में हमें ले गए, येट्स की दुनिया में ले गए, हैमलेट की दुनिया में ले गए, शेक्सपियर में, और वहां ले जाके हमें बताते रहे। तो खैर, ये तो पर्सनल प्रेफरेंस की चीज है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर आदमी उससे प्रभावित हो या उसी तरीके पे चले, पर मेरे कहने का मतलब ये था जो मैंने थोड़ा सा बताया, so that the university administration, the academic leaders which who are there in very forms, आपके ऑफिस के थ्रू भी, वाइस चांसलर के ऑफिस के थ्रू, प्रिंसिपल के ऑफिस के थ्रू, डीन के ऑफिस के थ्रू, वो प्रशासनिक बागडोर को बहुत मजबूत रखें। और उसके दो पार्ट बहुत अहम होते हैं। वन इज डिसिप्लिन, educational, the level of educational quality, punctuality, not only by the students but by the faculty also। टाइम पे आना, टाइम पे गाइड करना, अच्छे तरीके से पढ़ाना, पढ़ के आना और तब पढ़ाना, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि प्रशासनिक लीडरशिप जो है वो किस हद तक उन चीजों का ख्याल रखता है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू दे फॉलो देम। और दूसरी चीज जो उसके साथ साथ चलेगी वो होता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। पैसे होंगे तभी तो रिसर्च होगा, पैसे होंगे, यूनिवर्सिटी के पास अच्छे तरीके से खर्च होंगे, बजट होगा, ऑडिट होगा, तो आपके पास अच्छे अच्छे क्लासरूम होंगे, बड़े बड़े सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस रूम्स होंगे, लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं एक दो बार किसी प्रोफेसर से, बहुत सीनियर प्रोफेसर के साथ बात कर रहा था, तो मैंने पूछा यूनिवर्सिटी की पहली पहचान क्या होती है, एंड ही सेड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी उसकी पहली पहचान होती है।
वहीं से यूनिवर्सिटी का मापदंड देखा जाता है कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है। और ये बात मैंने देखी भी है, इंडिया में भी देखी है, इंडिया के बाहर भी देखी है। लाइब्रेरी और बुक्स, इनका संबंध इतना गहरा है और आपको इतना नजदीक जाना पड़ेगा इनके कि दुनिया खुलती है वहां। कोई जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो चाइना जाके पढ़े, लेकिन चाइनीज हिस्ट्री के बारे में, चाइनीज मैंडरिन लैंग्वेज के बारे में, वहाँ के संस्कार के बारे में बैठे बैठे वो लाइब्रेरी में पढ़ ले। और जब 10-12 साल के बाद वो चाइना जाएंगे, जो वो पढ़ के जाएंगे वो सारी दुनिया उनको सामने दिखेगी। यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, किसी भी जगह के लिए लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फाइनेंसेस हो, फाइनेंस की मोबिलाइजेशन हो, और उस पर यह ध्यान रखा जाए कि कोई बेईमानी ना हो, ऑडिट टाइमली होता हो, कहीं से किसी को शिकायत का मौका ना हो कि साहब एक तो पैसे आए, पैसे कहाँ गए कोई पता नहीं। This is also a part of the academic leadership to ensure at whatever level you are that the budget is always available, presented in time by the university officials. The expenditure is monitored and finally an audit takes place, जिसको हम कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, ताकि दुनिया ये जाने कि ये यूनिवर्सिटी खड़ी है, पैसे खर्च हुए हैं, तो पैसे कहाँ गए। The money has been invested in the right quarters and through education, through other means of enhancement in the mindset of the students, the money has been spent and the money has been spent positively. तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम लोगों ने अभी तक जो दो बातें की, एक तो रिसर्च एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा, जो कि एकेडमिक लीडरशिप की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद फाइनेंसेस, डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, वो भी देखना। तो ये दो चीजों को ध्यान में हम लोग रखेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी सारी रूपरेखा सामने रहेगी कि हमें किस दिशा में जाना है और किस पैराडाइम में हमको जाके इन्वेस्ट करना है, अपने समय को, अपनी कार्यकुशलता को और अपनी इन्वॉल्वमेंट को। ये दो चीज बहुत जरूरी होते हैं। आज के दिन में आप लोग सब जानते हैं और आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से चल रही है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक ऐसी रूपरेखा है जो आगे के लिए एक क्या कहिए उसको, बीकन लाइट है, एक रोशनी का एक जरिया है कि हमें कहाँ आगे पहुंचना है। मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं, इसलिए आप लोग खुल के बोल सकते हैं। हो सकता है हम लोग को कई जगह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ कमियां नजर आए, हो सकता है हमको ऐसी दिखे कि साहब ये एक लेफ्ट विंग, राइट ऑफ द सेंटर विंग से ज्यादा प्रभावित है, हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से जो उसमें अच्छी चीजें रखी गई हैं, उसमें जो इनोवेटिव चीजें रखी गई हैं, उसमें जो इंटीग्रेशन रखा गया है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो हमारे लिए आने वाले समय की बहुत बड़ी एक रूपरेखा है जो हमको समय पर उस दिशा में ले जाएगी, उस डेस्टिनेशन पर ले जाएगी जहां पर हमारे बच्चों को पहुंचना है। और उसमें बिना आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के सहयोग के, बिना फैकल्टीज के इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें आखिर ऐसी क्या चीज है आज के दिन, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो ऐसी क्या चीज है जो आज के युग के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से उसको एक बहुत इनोवेटिव, प्रैक्टिकल और मैटर ऑफ फैक्ट पॉलिसी बनाती है। दो तीन चीजें ध्यान में आती हैं। सबसे बड़ी चीज जो है कि हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो सिर्फ रट करके, सिर्फ जबानी याद करके, बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़ी बड़ी साइंस के मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे या उसको समझेंगे और समझ के सॉल्व करेंगे। हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्वाइट पॉसिबल। जो चीज रट के या जबानी याद की जा सकती है, जिनकी मेमोरी बहुत तेज होती है, वो शायद 2 घंटे 3 घंटे में उसको याद कर लेंगे। लेकिन जब आप किसी स्टूडेंट को इंश्योर करेंगे कि वो समझ के उस चीज को कर रहा है, हो सकता है उसको 2-3 दिन लगे, लेकिन जब वो समझ के निकलेगा, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो जाएगी उस सब्जेक्ट पे, फिर आपको जिंदगी भर उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना रास्ता निकालता जाएगा। रटने वाले शायद रुक जाएंगे।
जहां वो प्रॉब्लम को फेस करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा भाई यहाँ तक तो सही है, अब इसके आगे क्या करना है, ये प्रॉब्लम कैसे दूर करें, वहां पे अंडरस्टैंडिंग पे करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है किसी चीज को, वो क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग को देती है, जो मैंने समझा है थोड़ा बहुत, पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गया, पर इसमें एक एम्फेसिस के साथ आया कि आप उन मतलब one has to take those kind of things in the university, those kind of educational pursuits have to be followed, which lead to original and critical thinking at an early age. आज के दिन आप अमेरिका को देखिए, आइंस्टीन की बातों को देखिए, जिन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया साइंस में, रविन्द्रनाथ टैगोर को देखिए, उनके कोटेशंस हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, डू नॉट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। आप अपनी लर्निंग उस पर मत डाल दीजिए। आपकी एजुकेशनल लीडरशिप ऐसी ना हो, अरे यार हमने तो ऐसे पढ़ा था, बस तुम भी ऐसे पढ़ लो। नो, टैगोर सेज, गुरुदेव सेज कि वो तो एक दूसरे युग का बच्चा है, आपके युग हमारे युग का नहीं है वो। तो आपको ये समझ के करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड यू विल हैव टू एनकरेज हिम इन क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग। तो उसके लिए न्यू एनईपी 2020 बहुत आज के दिन में एक पाथफाइंडर की, मेरे हिसाब से पाथफाइंडर का स्टेटस रखती है। दूसरी चीज, जॉब सीकर्स बने रहे हम लोग सब, हम भी रहे, लेक्चरर की जॉब मिल जाए, कस्टम ऑफिसर बन जाऊं, आईआरएस बन जाऊं, सिविल सर्वेंट बन जाऊं, आप रहे, या आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर बने और बहुत अच्छे बने, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोग प्रोफेसर्स बने, फैकल्टी बने, कहाँ से कहाँ गए, कई लोग डॉक्टर्स बने, इतना बड़ा बड़ा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी ये सोचिए ठंडे दिल से, इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, हम लोग तो वर्ल्ड के नंबर 1 हो चुके हैं, कहाँ इतने जॉब दे पाएंगे? कौन सी गवर्नमेंट ऐसी जॉब दे पाएगी जहां ये सारी की सारी पॉपुलेशन फुल सेटिस्फाइड होकर के, फुलफिल्ड होकर के जॉब करना शुरू कर होगी? क्या इतनी जॉब इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन विच वी आर फेसिंग? इट कैन नेवर बी। हम लोग अक्सर देखते हैं टीवी पर, लोग नारे लगाते हैं, जुलूस निकलता है, सर नौकरी दे दो। सही बात है, नौकरी दे दो, लेकिन नौकरी होगी तब तो दे दो। इतने बड़े पॉपुलेशन, और आप ये कह नहीं सकते, वी कांट से दैट पॉपुलेशन में this is most brilliant and this is less brilliant and this is mediocre. No, everybody has his own talent. Somebody in the profession has got the talent for being a carpenter. Somebody has the talent to be a gold medalist. Somebody has the talent to be a scientist, and somebody else has the talent to be a very good doctor. So everything goes. But the new education policy 2020 emphasizes upon the fact that you should be job creators, not job seekers. Job creators baniye. How do you become job creators? You become job creators in the light of certain things. First of all, आपको स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है बच्चों को। आपकी जो एकेडमिक लीडरशिप होगी वो शुरू से इस दिशा में जाए कि भाई स्किल डेवलपमेंट में क्या काम कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या काम कर रहे हो, कर भी रहे हो या सिर्फ रट रहे हो या पढ़ रहे हो? प्रोफेसर साहब आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, आप वहां की डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे, आप कहेंगे बहुत बढ़िया, प्रोफेसर ने तो क्लास ले लिया भाई, फुल मार्क्स अटेंडेंस दे दो। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उस पर ध्यान दीजिए और ध्यान दिलाइए। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, एकेडमिक लीडरशिप की जिम्मेदारी होगी कि आप उस दिशा में लेके जाएंगे अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, जहां पर जाने के बाद बच्चे आपको सदियों याद रखेंगे कि साहब इन्होंने हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दिया था, कल होकर के हमें जॉब नहीं मिली तो हमने छोटा मोटा अपना एक इंडस्ट्री चलाना शुरू कर दिया बैंक का लोन लेकर। लेडीज को आपने सिखा दिया जरदोजी, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। एवरी स्किल्ड जॉब इज अ जॉब टू बी रेस्पेक्टफुली अडेयर्ड टू, रेस्पेक्ट के साथ देखी जानी चाहिए। आप फॉरेन कंट्री में जाइए, लोग सुनाते हैं, हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि कारपेंटर गाड़ी पे आता है, चढ़ के गाड़ी रखता है, काम करता है आपके यहाँ और चला जाता है और आपके साथ चाय पीता है। हम लोग कर सकते हैं इंडिया में चीज क्या करें? इसलिए कि वो मानसिकता है, वो मानसिकता बनी हुई है, ब्लू कॉलर्ड, व्हाइट कॉलर्ड, रेड कॉलर्ड, ग्रीन कॉलर्ड। आई डोंट बिलीव इन दिस। आई हैव बीन ए ब्यूरोक्रेट। और आप यकीन मानिए, कई बार मुझे लगता था
कि ये जो लाल फीताशाही है वो हमें खत्म किए जा रही है। आई यूज्ड टू जंप मेनी अ टाइम, टेक चैलेंजेस। मेरे कलीग्स कहते थे कि ये मत करो, ये रूल बुक के खिलाफ जा रहा है। आई सेड ओके, रूल बुक के खिलाफ तो जा रहा है, फायदा कितने लोगों को पहुंच रहा है? हम रूल बुक को देखते रहें या फायदा देखते रहें? So you got to be innovative thinkers. You got to be critically providing the leadership to the campus, to the students, and to the community जो उसके साथ जुड़ के आपके साथ चल रही है। वो कम्युनिटी देख रही है, वो कम्युनिटी में पेरेंट्स भी आएंगे, उस कम्युनिटी में सोशल एक्टिविस्ट भी आएंगे, उस कम्युनिटी में पॉलिटिकल लीडर्स भी आएंगे। उनकी भी नजर रहेगी आपकी यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि उनको जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उन सब चीजों को सही दिशा में ले जाने के लिए आपका रोड मैप बहुत क्लियर होना चाहिए, और अभी से बना के चलिए। आप सबको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अच्छी पगडंडियां पार करनी है जिंदगी की, बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस को लव कीजिए। आई हैव ऑलवेज लव चैलेंजेस इन माय लाइफ, बिकॉज चैलेंज की शक्ल में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आपको वहां ले जाएंगी जिसके लिए आप बने हुए हैं। एकेडमिक लीडरशिप वहां खींच के ले जाएगी जो आपको पूरे न सिर्फ स्टेट और यूनिवर्सिटी में, भारत में पहचान बना जाएगी कि इस आदमी ने ये काम करके दिखाया है, और उसी दायरे में दिखाया है जिस दायरे में बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। तो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ एकेडमिक लीडरशिप। पहचान वही बनेगी। आप उठा के देख लीजिए, आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यूनिवर्सिटी में, टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल सर्विस में, जो लोगों ने अपनी पहचान वहीं बैठ के बनाई। उन लोगों के लिए कोई जन्नत से, स्वर्ग से कोई देवता नहीं आया कि हाँ लो ये लो तुमको ट्रे पर दे रहे हैं, खड़े कर दो। उन्होंने वही मेहनत की, उसी सैलरी पे काम किया, उसी जटिलताओं से जूझे, और फिर कामयाबी की तरफ गए। तो आप क्यों नहीं कर सकते? So that is also a part of it, to be job creators, to involve and engage the students to be job creators, not job seekers. ये NEP में बहुत क्लियर आता है। इसका फायदा पहुंचवाइए और गाइड कीजिए बच्चों को कि आप किस दिशा में जा करके इस काम को सक्षम तरीके से करा सकते हैं। तीसरी चीज जो उसमें एक आती है, जिसमें आप लोगों को बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि आप लोग उस जनरेशन के आदमी हैं जिस जनरेशन में बहुत सी चीजें आपके टिप्स पे अवेलेबल हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर तो है ही, फेसबुक है आपके पास, इंस्टाग्राम है आपके पास, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप दुनिया में, जापान में, यूएस में, यूके में, चाइना में लोगों से बात करते हैं, वहाँ की चीजों को सीखते हैं, वहाँ से एकेडमिक इंटरचेंज हो सकता है। तो उसका नाम है ग्लोबल कनेक्टिविटी। वो आज के युग में बहुत जरूरी है। Unless and until you are connected to the world at large, आपके बच्चे जो हैं वो कुएं के मेढक होकर रह जाएंगे, और ये कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी आंखों में आंसू आएंगे जब आप देखेंगे कि आपका बच्चा चुपचाप खड़ा है और एक यूएस का बच्चा जो कि उससे कहीं कम इंटेलिजेंट है, वो तड़ातड़ बोल रहा है, तड़ातड़। अब हमारा बच्चा कोप नहीं कर पा रहा है। मैं तो ये सहन नहीं कर पाऊँ, आप भी सहन नहीं कर पाए। हमारे बच्चों में भी वही काबिलियत है, शायद ज्यादा है, सक्षमता ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज शायद कम है। हम थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग, कई लोग हमारे यहाँ वहां भी है, लेकिन उनको बेसिक फैसिलिटीज जल्दी मिल जाती है। तो आप इंश्योर कीजिएगा, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी कि जब आप एकेडमिक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एक समझिए आपके साथ एक जिम्मेदारी चलेगी, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सिटी के हैं, विदाउट एनी कास्ट डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी कलर डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी सेक्स डिस्टिंक्शन, लेडीज, गर्ल्स, बॉयज, सब वर्ल्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद होंगे। You have only to channelize those platforms for the benefit of the students. आपके पास इंस्टाग्राम होगा, आप यूनिवर्सिटी में उसको एक कॉमन रूम बनवाइए जिसमें ये सारी चीजें हों। बच्चे आए, कॉफी पिए, चाय पिए, गप्पे मारे, साथ साथ देखते जाएं कि भाई जापान के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, और क्या चीज सीखी जा सकती है। इस दिशा में आपको जाना पड़ेगा। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और ये तीनों चीजें जो है, जो मुझे समझ में आया है, मैं
बहुत बड़ा पीएचडी या प्रोफेसर तो हूँ नहीं, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ। मुझे यही समझ में आया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी शायद इस दिशा में ले जा रही है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अच्छी चीजें हैं, क्यों ना उसको अडॉप्ट किया जाए, क्यों ना उसको आगे लेके चला जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसकी हम नहीं एग्री करेंगे कि राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, फलाना है, उन चीजों को छोड़ दीजिए, दिमाग में मत लाइए। जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको लेके आगे चलिए, और पॉजिटिव चीजें बहुत मिलेंगी। तो ये दिस इज वन ऑफ द प्राइम responsibilities and duties, I will call it the duty of the academic administrators, to ensure that the best practices as brought out in the new education policy should be followed, not only in theory but in practice also. तो यहाँ तक तो मुझे लगा कि इन बातों के इंट्रोडक्शन से मैं इस बात को शुरू करूँ आपके साथ। अब जो बात मैं शुरू बोलने जा रहा हूं कि हु आर मोस्ट कॉम्पिटेंट टू बी द एकेडमिक लीडर्स इन द यूनिवर्सिटी, हु आर द मोस्ट कॉम्पिटेंट। मेरे हिसाब से वही लोग सक्षम होंगे। देखिए, इस पे बहुत प्रैक्टिसेस हुई हैं, बहुत कंट्रीज में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हर कंट्री ने अलग अलग फॉलो किया है। आप सिंगापुर की यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, बहुत अच्छी मानी जाती है, दुनिया में नाम होता है साहब, बट सिंगापुर यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऊपर से टॉप हेवी यूनिवर्सिटी चलती है। ग्रोथ जो होना चाहिए, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जो होना चाहिए, मेरे हिसाब से शायद कम होता है, इंडिया में ज्यादा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बीएचयू ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए। सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल है जो हमारे यूनिवर्सिटी इलेक्शंस होते हैं, बच्चों के हाथ में एक तरह से पॉलिटिकल सत्ता जाती है, उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है ये। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में सीखते हैं वो, उन पर मत जाइए कि पोस्टर कितने जमीन पे आ गए, कितने लड़ाई झगड़े हो गए, कितनी, वो सब भूल जाएंगे बच्चे। जब कल वो प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर बनेंगे, तो उनको लगेगा कि भाई आने वाले दिनों में उनको किस तरह से अपनी जीवन यात्रा को तय करना है। हाउ do they have to plan their future lives, not only professionally, socially as well. तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग एक चीज होती है, और उसको एक बेस बना करके अगर आप चलना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, यूनिफॉर्म चीज नहीं हो सकती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉलेजेस जो है वो अलग अलग तरीके से डील करते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, नॉर्थ साइप्रस कंट्री है, वहां के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एक कंसेप्ट लाया गया नॉर्थ साइप्रस में कि जो प्रिंसिपल होंगे वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, एजुकेशनिस्ट नहीं, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और उस पर स्टडी की गई नॉर्थ साइप्रस में कि वाज इट सक्सेसफुल। लोग कहते हैं ना भाई, हम लोग भी, देखिए आपको मैं बताता हूँ, बिहार में, मैं रांची जो था वो बिहार का पार्ट था, झारखंड। तो जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था, 1970 की बात है, तो बिहार में कई जगहों पर चोरी, कॉपिंग बड़ी होती थी। कई जगह होती है, सिर्फ बिहार में नहीं होती, लेकिन बिहार में होती थी। और कई यूनिवर्सिटीज बदनाम हो गए थे कि साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, कि यहाँ पर चीटिंग से लड़के आगे निकलते हैं, तो इनकी डिग्री की क्या महत्व होगी, और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो बिहार गवर्नमेंट में जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, बड़े सक्षम लोग थे और कुछ करना चाहते थे, उन्होंने क्या सोचा कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कड़क आदमी को वाइस चांसलर बनाओ जो जाके यूनिवर्सिटी को सीधा करे। ऐसे 2-3 कड़क लोग मिल गए उनको, और बड़े जबरदस्त कड़क लोग थे वो। उन्होंने जाते ही जाके झंडा गाड़ दिया, चोरी बिल्कुल रोक दी। छुरा रख करके लोग चोरी करते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी नजदीक जाए, चुके छुरा है। तो वो सब छुरे भी हट गए, चोरियां भी हट गई, उसमें टाइम लगा, और यूनिवर्सिटी वाज पुट बैक ऑन द रेल्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा काम किया उन IAS अफसरों ने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, हो सकता है आप लोग जानते भी हों, कुछ लोग उसमें से पुराने लोग अगर हो तो। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम भी हुआ, बच्चों में इतना डर समा गया कि वो चोरी तो छोड़ गए, उसके बाद ओरिजिनल थिंकिंग भी बंद कर दी। बस वो बाहर से गाइड लेके पढ़ते थे, रटते थे, प्रोफेसर के यहाँ सीखते थे, वही एग्जाम में लिखते थे, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास मार्क्स आते थे। जब एक्टिव बन करके दुनिया में जाते थे जॉब के लिए, नहीं मिलता था। तो
उसका भी एक दुष्परिणाम हुआ। चोरी तो रुक गई, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं, फेयरनेस। वो फिल्म है ना 10वीं फेल या 10वीं पास, एक फिल्म भी आई थी, मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। उसमें भी जो लड़का वो भारतीय पुलिस, मनोज शर्मा। हाँ ट्वेल्थ। हाँ हाँ, थैंक यू। तो वो भी तो चोरी का ही शिकार हुआ था कि उसके यहाँ चोरियां इतनी होती थी कि उसने जाकर के कहा कि भाई चोरी, और यूपीएससी के इंटरव्यू में बोला कि साहब सच्चाई ईमानदारी से उसने बोल दिया कि जब चोरी हुई तो मैं कुछ नहीं कर सका, अभी कोई चोरी का शिकार हो गया। तो हम लोगों में वो गट्स है, हमारे पास अभी भी वो वैसे लड़के मौजूद हैं भाई, वैसी लड़कियां मौजूद हैं जो अपनी प्रतिभा पर आ जाएं, अपने मेरिट पे आ जाएं, दुनिया में छा जाएं। ये मेरे 68 साल के बाल बोल रहे हैं आपको, मैंने देखा है। ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ इंडिया में मौजूद हैं जो किसी भी यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर जाके नंबर 2 पे नहीं खड़े होंगे, नंबर 1 पे होंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको वो माहौल मिले। आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर जैसे साइप्रस में मैंने बताया कि ब्यूरोक्रेट को बना दिया गया, उसके बाद स्टडी की गई 10 साल के बाद कि भाई कैसा रहा, उन लोगों ने पाया कि नहीं बहुत अच्छा रहा, फाइनेंसेस ठीक हो गए, कोई करप्शन नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेट आए डंडा घुमाते रहे, प्रिंसिपल बन के, डीन बन के, और कहा कि नहीं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, सब हो गया। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि कंसल्टेटिव मशीनरी खत्म हो, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने जाएंगे, आप प्रशासनिक व्यवस्था एक पुलिस थाने की नहीं सुधार रहे, आप प्रशासनिक व्यवस्था एक विश्वविद्यालय, एक महाविद्यालय की सुधार रहे हैं। वहां पे क्रिमिनल से नहीं डील कर रहे हैं आप, स्टूडेंट से डील कर रहे हैं आप। स्टूडेंट्स में गुड बैड अगली सब मिलेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी होगी, जो हम लोग एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं और होंगे, कि आप उनको सही दिशा में ले जाएं, उनके साथ बात कीजिए, उनको कंसल्ट कीजिए। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सुनिए, फैसला आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आप ही एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लेकिन वो आपका फैसला बेस्ड होगा इन तथ्यों पर। वो फैसला डिक्टेटोरियल नहीं होगा, उसमें दोनों चीजों का मिश्रण होगा, जो बच्चे चाहेंगे वो, और जो आप चाहेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भलाई के लिए, जो वाइस चांसलर चाहेगा, जो एकेडमिक लीडर्स चाहेंगे वो। उससे क्या होगा कि आप एक जो उसका एक बेस्ट प्रैक्टिसेस निकल के आएगा, वो बहुत फायदेमंद। इसलिए मैं आपको और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चलिए एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की बात करता हूं। बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं, बड़े बड़े लिटरेचर के लोग निकले हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले हैं। आपने कई डॉक्टर्स की बायोग्राफी पढ़ी होगी, मैं पढ़ता रहता हूँ। कई ऐसे ऐसे हैं जो, नेल्सन मंडेला को ले लीजिए। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे रॉबिन आइलैंड में, और जब बाहर आए तो उनको इतनी यातनाएं दी गई थी कि कोई दूसरा आदमी शायद बाहर आता तो बहुत क्रूर हो के आता। उन्होंने सारी अपनी यातनाएं, सारी अपनी बुरी यादें जेल में छोड़ दी। और जब बाहर निकलने लगे तो वो जो जेलर था जिसने उनको सबसे ज्यादा यातना दी थी, उनके बच्चे की मरने की खबर 10 दिन के बाद दी थी, उनको टॉर्चर किया था, वो खड़ा हो गया और वो थरथराने लगा कि अब तो ये प्रेसिडेंट बनेंगे, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। एंड नेल्सन मंडेला फॉलोड बापू, फॉलोड महात्मा गांधी। तो उनका क्या सेंटेंस आया था, मैं आपको माफ करता हूँ, आई फॉरगिव यू। ये है भारतीयता, और ये भारतीयता नेल्सन मंडेला ने सीखी और करके दिखाया। 5 साल वो प्रेसिडेंट रहे, 5 साल में उन्होंने कहां से कहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया, साउथ अफ्रीका को ले गए, और जब अपनी हाइट ऑफ पॉपुलरिटी पे पहुंचे, लीडरशिप का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिसमें वो 10-15 साल और आगे चल सकते थे, उन्होंने रिजाइन करके हट गए, बोले बस मेरा काम पूरा, कोई और आएगा। तो दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच लीडर्स आर बॉर्न। ये लेजेंड्स होते हैं। तो आप लोगों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके यूनिवर्सिटीज में, जो आपके कॉलेजेस में, जो आपके टीचिंग प्रांगणों में, जहां जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप वहाँ के एकेडमिक काउंसलर हैं, एकेडमिक लीडर हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो आप क्या इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि आपको पता है कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं?
दो तरह के बाबू होते हैं हम लोग। 10 बजे आए, चाय पी, 12 बजे लंच खाया, 2:30 बजे फिर चाय पी, 4 बजे बस्ता उठाया, निकल गया। तनख्वाह तो मिलनी मिलनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी सोचिएगा, एट द एंड ऑफ द डे, वेयर यू एबल टू सक्सेसफुली सेटिस्फाई द सोल इनसाइड यू। आपको कुछ ऐसी खुशी हुई कि आज आपने कुछ ऐसा काम करके बच्चों के लिए दिया है जो उनके लिए बहुत बड़ी राह खोल देगा, बहुत बड़ा रास्ता खोल देगा। दैट विल बी बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी, दैट विल बी वॉकिंग द टाइट रोप, दैट विल बी टेकिंग यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, taking you into, I don't know whether to call it difficult thorny ways, wasteland लगेगा आपको, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। कई प्रोफेसर्स में हमको मिले हैं लाइफ में, कई टीचर्स हमको मिले हैं, डॉक्टर्स हमको मिले हैं, जो वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया होते थे। आप उनके साथ 15 मिनट बात कर लीजिए, आपको लगेगा दुनिया खोल दी उन्होंने आपके आगे। उनको समझने वाला कोई नहीं होता। और वहीं पर एक सेकंड ग्रेड टीचर होते थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी बच्चों, बिकॉज उनको पैसे मिलते थे, वो गाइड्स पढ़ाते थे, एग्जाम में पास करा देते थे, उनका काम पूरा हो जाता था। कभी ये नहीं सोचते थे कि बच्चे जब पास करके निकलेंगे किस लायक होंगे। अगर बच्चा इस लायक नहीं होगा कि इंटरव्यू में अच्छा कर सके, अगर बच्चा इस लायक नहीं होगा कि जब जीवन की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देगा तो वो लड़खड़ाने लगेगा। क्या फायदा हुआ ऐसे टीचर, क्या पढ़ाया हमने? आई थिंक कुछ नहीं किया। तो हमको उस चीज को, आप लोगों के पास उम्र है, आप लोगों के पास, यू हैव द एडवांटेज ऑफ एज, you have the advantage of opportunities, you have the advantage of technical integration with knowledge and literacy. Make the best out of it. And when you make the best out of it, don't keep it only for yourself. Divide it, share it with the world, share it with the students, so that tomorrow when they go, they will say, yes, there was a person in the university who guided me, and today, whatever I am, it is because of that. मैं खुल के कहता हूँ, मुझे एक दो प्रोफेसरों ने बनाया। अगर वो नहीं होते तो मैं IRS तो दूर, स्कूल के टीचर के लायक भी नहीं था। पर उन्होंने सही गाइडेंस दी थी, सही टाइम पर गाइडेंस दी थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपना देता हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मत मानिएगा, सिर्फ एक एग्जांपल है। MA का एग्जाम दे रहा था, सेकंड पेपर चल रहा था इंग्लिश लिटरेचर का। तो जाड़े का दिन था, 9 बजे शुरू होता था, 1 बजे खत्म होता था, 4 घंटे का था, 8 पेपर होते थे। तो जब सेकंड पेपर हुआ तो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और मुझे लगा कि ये खत्म हो गया मेरा करियर, कुछ नहीं कर पाऊंगा इस पेपर में। मैं क्लासरूम छोड़ के, एग्जाम चल रहे थे, लोग लिख रहे थे, एक एक कॉपियां भर चुके थे, मैं जाकर के बालकनी में बैठ गया। वो बालकनी मेरी फेवरेट जगह थी, वहां से जंगल और वो दिखते थे, लोग आते आते दिखते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता। पीछे से इन्विजिलेटर आए। इन्विजिलेटर वही थे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, जिनका क्लास में कभी नहीं छोड़ता था। वो आए, उनका नाम भी बता देता हूँ, प्रोफेसर केशव प्रसाद। वो आए, अभी भी हैं वो, इज लिविंग। मैं जब भी जाता हूँ पैर छूने जरूर जाता हूँ उनका, रांची में, उनके घर पे। वो आए बाहर, कहने लगे क्या कर रहे हो तुम? हम कहा सर क्या करना है, क्वेश्चन देखा आपने? हाँ देखा। हम कहा क्वेश्चन लिखने लायक है सर? मैं तो घर जा रहा हूँ सर, मेरा करियर खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूँ, जाके कुछ और करूँगा। तो उन्होंने 5 रुपये का नोट निकाला, जो एक छोटा सा, आप लोगों ने क्या यूनिवर्सिटी में भी होता होगा, चाय पिलाने वाला पियून, उसको दिया, कहा कि जाओ इनको नीचे से, जाड़े का दिन है, बढ़िया से चाय ला के दो। हमसे बोले पानी से, ठंडे पानी से चेहरा धो और चाय पियो और फिर आओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। तुमको शायद समझ में नहीं आई ये बात। तो मैं, आप समझो 20 मिनट चले गए 4 घंटे में से, यही हो रहा था। उसके बाद वो अंदर चले गए, इन्विजिलेशन करते थे वो, जाहिर सी बात है। तो मैंने चाय पी, चेहरा धोया और फिर आकर के पेपर शुरू किया, लिखा। जब लिखने लगा, आप यकीन मानो, पता नहीं वो कौन सी बात थी, उनकी बातों का असर था या कोई डिवाइन पावर था, मुझे लगा अरे ये तो सही कह के गए, ये तो पेपर ऐसा है कि इसमें तो कुछ बढ़िया चीज लिख सकता हूँ मैं, ओरिजिनल थिंकिंग हो सकती। और लिटरेचर था, तो मैंने लिखा। लिखते लिखते लास्ट पेज के 1.5 पेज, 1 पेज ही लिख पाया था। वो आगे कहने लगे लाइए कॉपी लाइए, हो गया, आप जाइए।
तो मैंने कहा सर जरा देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है। बोले हाँ हाँ जाइए, आपके दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं, आपकी मंडली आई हुई है, चाय वो पीजिए, मैं आता हूँ नीचे। 3rd फ्लोर पे था पीजी का, मैं नीचे चले गए हम लोग। वो 10-15 मिनट के बाद आए, कॉपियां सबमिट करके आए। वो सबसे बात करते रहे, मेरे से नहीं बात कर रहे। मैं चुपचाप खड़ा था, तो वो आए मेरे पास। फिर मैं गया, हमको सर आपने देखा? बोले हाँ देखा, सबके सामने। बोले क्या लिखा है आपने? जो बाकियों ने लिखा उसमें तो कुछ है ही नहीं आपको, तो आपको 40-45 आएगा। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने गुस्से में कह दिया, हमको सर यही बात तो मैं आपको उस टाइम कह रहा था, आप नहीं माने कि नहीं लिखो लिखो। बोले नहीं नहीं अभी मैंने पूरी बात नहीं की। वो ठीक है, अगर मेरे जैसे एग्जामिनर के पास तुम्हारी कॉपी आएगी, जबकि उनके पास नहीं जाती, वो हमारे यूनिवर्सिटी के थे, उनके पास तो जाने का मतलब ही नहीं था। उन्होंने तभी कहा कि मेरे जैसे एग्जामिनर के पास आएगी, यू विल गेट नॉट लेस देन 90। हमने कहा क्यों सर? बोले यार तुम्हारी राइटिंग तो ऐसी है जैसे लगता है एक अलग ही आदमी कुछ लिख के निकल गया, और लिटरेचर को जो होना चाहिए था वो सब तुम लिख गए। अब तुम्हारी किस्मत है, तुमको 40 आएगा या 90 आएगा। आप यकीन मानेंगे उस पेपर ने मुझे 85 दिया, एंड आई गॉट फर्स्ट क्लास। आई स्टिल ओ इट टू दैट प्रोफेसर। मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता, अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी इंस्पिरेशनल बनिए, इंस्पिरेशनल बन के गाइड कीजिए लोगों को। पैसे आते रहेंगे, पैसे जाते रहेंगे, इनकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लोगों को खुद महसूस हो जाएगा, आज अच्छा लगता है, गाड़ी हो, घर हो, स्कूटर हो, अच्छी जगह खा पी ले, उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगता है कि किसी बच्चे की जिंदगी बना गया। और वो बच्चा 20 साल के बाद, whenever that student comes to you, he remembers you with a smile on his face, with tears in his eyes. Look, here I am because of you. If you can do that, you fulfill whatever you have been made to do in this life. That is my advice. Now coming back to the subject again, एक चीज है जो मुझे कहनी है, शेयर करनी है, कि जब हमने एनईपी डिस्कस कर लिया, हमने इंडियन यूनिवर्सिटीज को डिस्कस कर लिया, नाउ लेट अस डिस्कस सम यूनिवर्सिटीज आउटसाइड। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, यूके की यूनिवर्सिटी को देखा है, यूएसए की यूनिवर्सिटीज को देखा है, नेपाल में रहा हूँ, नेपाल की यूनिवर्सिटीज को देखा है। हर कंट्री की यूनिवर्सिटी यूनिक होती है, और वहाँ के कल्चर, वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ के फूड हैबिट्स, वहाँ की कनेक्टिविटी को कन्वे करती है। इन अमेरिका में क्या है, इट इज कंसल्टेटिव मैकेनिज्म एट इट्स बेस्ट, लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर 99% कंट्रोल्ड बाय द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चेयर होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है, कुछ पब्लिक फंडेड भी है। तो वहां पे लेकिन एक चीज है अमेरिका में, आप देखिएगा, जो कि अब एनईपी भी फॉलो कर रही है। आप लोग जब इनिशिएटिव लेंगे और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में आप लोग टॉप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, साथ में म्यूजिक पढ़ रहा है, कल्चर पढ़ रहा है, साथ में एटॉमिक एनर्जी पढ़ रहा है। इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में वही है, वो 4 सब्जेक्ट, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और साथ में एक इंग्लिश पढ़ते जाओ ताकि तुम कम्युनिकेट करते हो। अगर बच्चा उसके साथ में गिटार बजाना चाहता, क्यों नहीं बजाने देते उसको? क्या रोकते हो आप? वायलिन बजाना चाहता है, एक लड़की डांस सीखना चाहती है, देयर इज नो हार्म। वो उसके इंटेलिजेंस का एक प्रोजेक्शन है, उसके अंदर टैलेंट 5 तरह का है। एक एकेडमिक टैलेंट है, कल्चरल टैलेंट है, एक सोशल टैलेंट है, एक फैमिली टैलेंट है, एक प्रोफेशनल टैलेंट है। You have to ensure that all 5 talents are merged and taken to its fulfillment. ये होगी आपकी एकेडमिक लीडरशिप, कि आपने उन टैलेंट्स को मर्ज करने का मौका दिया बच्चे में, आपने रिकॉग्नाइज किया उसके इंडिविजुअल टैलेंट्स को, और फैकल्टी को गाइड करेंगे आप, बिकॉज आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आपके हाथ में लीडरशिप होगी। यू कैन गाइड द फैकल्टीज that please proceed in these directions, ensure that the children get such and such. फिर देखिए क्या मजा आता है। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को आप देखेंगे, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पे इंडिविजुअल थॉट को मिलता है। आइंस्टीन जब पढ़ते थे, तो आइंस्टीन जब चले गए थे, तो उन्होंने वहां की यूनिवर्सिटीज में एक ही बात कही थी जाकर के, कि रेस्पेक्ट, बल्कि मैंने वो लाइन लिखी हुई है, मुझे बड़ी इंप्रेस करती है आइंस्टीन की लाइन, आपको सुनाता हूँ कि education is not the learning of facts,
It is the training of the mind to think. That is Albert Einstein. So he was a critical thinker. He was an original thinker. He was a scientist par excellence. तो इन चीजों को आपको डेवलप कराने देना है, जो अमेरिका से बेस्ट प्रैक्टिस आप सीख के ला सकते हैं। कोई नहीं रोकता है आपको। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कीजिए, अपने पॉइंट्स को लिखिए, गिव इट टू द वाइस चांसलर और कि साहब ये चीजें हमने रियलाइज की हैं, व्हाई डोंट वी इम्प्लीमेंट इट। हो सकता है वाइस चांसलर शुरू में बोल देगा, या प्रिंसिपल बोल देगा, या डायरेक्टर बोल देगा कि नहीं यार ये इंडिया में नहीं चलेगा। आप स्टूडेंट्स के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि कैन दिस बी practically feasible to you? If the students say yes, go ahead with it. Try to take, आप कभी कभी अच्छी मूवीज देखते होंगे जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज पे बनती हैं, कई मैंने देखी हैं जहां पर प्रोफेसर जो हैं दोनों तरह के मिले, जो बहुत रेस्ट्रिक्टिव भी थे और कुछ ऐसे थे जो ओरिजिनल थिंकिंग को डेवलप करने देते थे, उनके राइटिंग को बढ़ाने देते थे, उनकी ओरिजिनल जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाने देते थे। तो दोज काइंड ऑफ प्रोफेसर्स have always been the backbone of American universities. Unfortunately, इंडिया में भी है ऐसे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, या उनको शायद इंसेंटिव नहीं मिलता, या वो घबराते हैं कि आगे जाएंगे मेरी बात कोई समझेगा नहीं, यहाँ तो जी हुजूरी वाले चले जाएंगे जो वाइस चांसलर की जी हुजूरी करेंगे, प्रिंसिपल की जी हुजूरी करेंगे, उल्टे सीधे काम करवा देंगे, हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू हैव एन एकेडमिकली qualified leadership provided to the institution where you are working, to ensure that such kind of faculty, such kind of students are always encouraged. They are never said, it is never said to them कि भाई ये सब काम मत करो, या आप हमारे मैंडेट से बाहर है। मैंडेट से बाहर तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आपको लाइन ड्रॉ कहाँ करनी है कि कोई क्राइम ना हो, कोई गलत काम ना हो, कोई कल्पेबल एक्शन ना हो। That is where you have to draw the line. Otherwise, अगर वो फिजिक्स के साथ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है, म्यूजिक के साथ सोशल साइंस पढ़ना चाहता है, I don't think there is any harm. And the NEP in the days to come, जैसे जैसे ये implement होती जाएगी, national, I'm sure such kind of courses will be there. Now you have to prepare yourself mentally to take it forward, to understand such kind of multidisciplinary roles which the educational policy is going to follow. You have to ensure it. If you are able to ensure it, if you are able to tell it to the university कि साहब इसको लेके चलिए, कॉलेज को लेके चलिए, you can do great work. आप घबराए नहीं, डरे नहीं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या लिख के दूं। ये सब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अभी हमने हाल में, आपको मैडम ने इंट्रोड्यूस किया था मुझे भी, कि साहब आईडू के हिसाब से हम लोग एक बनाया है अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज। उसको हम लोग चलाते हैं, सोसाइटी है। हम लोगों ने समीर भाटिया को बुलाया था। समीर भाटिया का आप लोग वाकिफ होंगे, hotmail.com इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत नामी आदमी है, बिल गेट्स के साथ काम करते हैं, इंडियन है, IIT रुड़की से पढ़ के इस वक्त USA में ही इज बिग नेम, वेरी बिग नेम। तो उनका, बल्कि मेरे पास उसका वो है, वीडियो है, मैं मैडम अब्बासी से शेयर कर लूंगा, आप लोग देखिएगा। पूरे टॉक का वीडियो है, करीब 60 मिनट्स का, 1 घंटे का लेक्चर आया था, हमने यही कराया था दिल्ली में। बच्चे आए थे, टीचर्स आए थे, फैकल्टीज आई थी, बहुत लोगों को बुलाया था। उनके लेक्चर का जो मेन जिस्ट था, एक तो बोलते बहुत अच्छा है, वंडरफुल स्पीकर ही इज, उनका मेन जिस्ट था, और वो जमीन से जुड़े हुए, वो अमेरिका जाके अमेरिकन धरती वाले नहीं बन गए, वो भारतीय है, बात यहीं की करते हैं, मट्टी यहीं की है, बेस्ट प्रैक्टिस वहां से लिया, विच इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना लेक्चर दिया, उन्होंने 2 बातों पर एम्फसाइज किया। पहली बात उन्होंने कहा, बच्चे को गलती करने दीजिए, बच्चा परफेक्ट नहीं है, बच्चे का मतलब स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, PhD स्कॉलर, व्हाटएवर, गलती करने दीजिए, सीखने दीजिए, उसको रट करके, मेमोराइज करके कोई बात सीखने मत दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने दीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करने। वो फिजिक्स के साथ अगर म्यूजिक की बात करता है, सुनो और इनकरेज करो कि वो इस बात को कैसे कर सकता है। तो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैव टू बी not only projected, they have to be understood, appreciated and encouraged. इसके लिए आप लोग, you are entering a world which is very different from our world.
हम लोग की दुनिया 4 चीजों पे चलती थी, न्यूज़पेपर, बुक्स, क्लासरूम एंड जॉब्स। 5वीं चीज कुछ नहीं। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास सोशल मीडिया खड़ा है, आपके पूरी की जो कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। भाई हमारे पास तो व्हाट्सएप ही नहीं था, यूनिवर्सिटी क्या बनाते हैं? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी हमारे पास, आपके पास है। आपके पास तो इंफॉर्मेशन का खजाना है भाई। टिप दबाइए, फ्रांस की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, यूएस की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट पर एक से एक ले लीजिए। मैं बहुत सी विमेन को देख रहा हूँ, वेरी हैप्पी। सो विमेन एम्पावरमेंट पर ले लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ले लीजिए, ये सब एजुकेशन के पार्ट हैं। Don't limit the educational chapter only to books. There is much more than books. Much more than books. वो हैमलेट की एक लाइन है ना, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are ever dreamt of in your philosophy. इंग्लिश लिटरेचर वाले होंगे तो शायद तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसमें। मैं अक्सर कोट, थैंक यू प्राची। So that is how it is. There is a world waiting for you to explore. There is a cosmos waiting for you to go into. And you must enter that world. You must enter that cosmos. Be original thinking. And I can assure you, I have enjoyed it. जबकि मैं तो बहुत पुराने वासी हो चुका, अब आप लोग तो नए हो, तो हमसे कहीं बेटर आप लोग को एंजॉयमेंट, कहीं बेटर फुलफिलमेंट आप लोग को मिलेगी इस दुनिया। तो गो फॉर दैट, मेक योरसेल्फ एन एडवेंचरर, वॉक दैट रोड। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है ना कि वो the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. तो आप लोग भी miles to go है भी, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है आने वाले समय में, but you have to develop that faculty, be energetic, be in touch, अपनी communicative skills को बढ़ाइए, because communicative skills, let me tell you, are very important. The moment you can communicate effectively with whosoever you do, Vice Chancellor, the Governor, the Principal, the Director, the students, the faculty, वो आपको समझ जाएंगे 2 मिनट। So your communicative skills have to be par excellent. You have to be an avid reader. पढ़िए, खूब पढ़िए। अभी शशि थरूर जी का मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। तो शशि थरूर इज वंडरफुल स्पीकर, एंड उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप इतना कुछ जानते कैसे हैं, भूल गए नहीं, आप इतना एज हो गया। उन्होंने जवाब ये दिया कि आई स्टिल रीड ए बुक एटलीस्ट फॉर आवर एंड हाफ बिफोर आई स्लीप। कोई एक किताब उठा के पढ़ता हूँ। तो बुक्स विल बी बुक्स, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप उसको व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिए, प्रिंट में पढ़ लीजिए, जिस डिजिटल में पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, सो दैट इट एनहांसेस द एनॉर्मिटी ऑफ योर नॉलेज। कम्युनिकेटिव स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप आपकी हो जाए, एंड ऑलवेज फॉरगेट यू हैव टू बी इन कंसल्टेशन। आप जितना कंसल्ट करोगे लोगों को उतने ही अच्छी फायदे में रहोगे। लेट अस नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड टॉप हेवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कि हम ही सब कुछ जानते हैं बाकी तो कोई कुछ नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं। आपको और हमको एक गार्डनर भी बता सकता है फार्मिंग के, गार्डनिंग के बारे में जो हम नहीं जानते। एक कारपेंटर बता सकता है अबाउट द फिनिश ऑफ ए फर्नीचर जो हम नहीं जानते। एक कंप्यूटर वाला बता सकता है जो हम कुछ नहीं जानते। एक प्ले राइट बता सकता है जो प्ले लिखता है कि ड्रामा लिखो तो कैसे लिखो। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाए और ऐसा उसमें चले जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड न सिर्फ अडॉप्टेड हों, उनको प्रैक्टिस किया जाए, दे कैन बी टेकन फॉरवर्ड एंड दे कैन बी सेफली गाइडेड टू द स्टूडेंट्स। अल्टीमेट एंड क्या है? At the end of the day, it is for the students to get benefit from us all. आपसे भी, कॉलेज से भी, टीचर से भी, यूनिवर्सिटी से भी, लाइब्रेरी से भी, रिसर्च से भी। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट हिम डू द रिसर्च। आज के दिन आज इजराइल को आप देख रहे हैं, इतना आगे बढ़ गया है साइंस में और एग्रीकल्चर में। क्यों बढ़ गया? उन्होंने रिसर्च किया। उनकी एग्रीकल्चर जो है वो रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, लड़ाई जो कर रहे हैं वो अलग, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, तो पॉलिटिकल मामला है, लेकिन जो उनकी खूबियां हैं उसको तो हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। अमेरिका में क्या है, जापान में क्या है, चाइना में क्या है? लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च। एंड व्हेन यू टॉक ऑफ रिसर्च,
You talk of laboratories, you will have to come to the universities. उसी का पार्ट होता है। यूनिवर्सिटी एकेडमिया ही उसको कहीं ना कहीं गाइड करता है, या उसको एनकरेज करता है, या उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। So this is critical thinking and intellectual curiosity, affirmative action and consultative machinery. You have to have all these four things whenever you start dealing day to day or whatever way you want to go ahead in your academic pursuits, academic leadership pursuits. This was certain things which I think I thought I will share with you. And yes, one more thing, that during the course of your activities, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो आजकल हर अच्छे यूनिवर्सिटी में होता है, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, उसको हम लोग SEDG बोलते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। उनको भी आपको ऊपर लाना है, उनको पीछे नहीं छोड़ना है। वो बेचारे बोलने में शायद हैंडीकैप्ड हो, लिखने में हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली इम्पेयर्ड हो। यू हैव टू इंश्योर, आपको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट से जाके देखना होगा, बुलाना होगा, एनकरेज करना होगा कि भाई कोई ना कोई एबिलिटी उसमें ऐसी होगी जो उसको बहुत अलग करती होगी। somebody may be a very good singer, somebody may be a very good writer, somebody could be a very good mason or carpenter or computer wizard। उसको आप एनकरेज कीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपका एक बहुत बड़ा तबका पीछे रह जाएगा। एंड एजुकेशन एज envisaged by the founding fathers, महात्मा गांधी सबसे ज्यादा, और भी लोग अभी भी, तो उन लोगों ने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी कीजिए, भारतीय संस्कारों और हमारे जो अपने तहजीब है उसको साथ लेके चलिए, बट गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड, टू सी द वर्ल्ड, टू मीट पीपल, टू बी कनेक्टेड। अब तो सब कुछ सोशल मीडिया है, आप फिजिकल मीटिंग ना करा के सोशल करा दें, उसी में बहुत कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जो उनके बहुत काम की होंगी, जो आपकी गाइडेंस में वो काफी आगे लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो जो मुझे कहा गया था, शायद मैं करीब करीब कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम, आई विल बी हैप्पी टू शेयर वट एवर वे आई कैन, प्लीज। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और लेट अस गो ऑन ए डिस्कशन फोरम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर आपका लेक्चर सर। थैंक यू। सर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ जानना चाह रहा था कि जैसे सर इसमें स्नातक स्तर पर यदि बच्चा प्रथम वर्ष पास करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यदि दूसरा वर्ष करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और तीसरा वर्ष यदि कर लेता है तो उसे डिग्री दी जाएगी, और 4 वर्ष करता है तो उसे शोध दिया जाएगा। लेकिन सर जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी योग्यता कुछ और मांग ले। हो सकता है कोई बच्चा स्नातक करके डिग्री करके छोड़ दिया है, वहाँ 4 वर्ष की जरूरत है, कोई डिप्लोमा करके छोड़ दिया है, वहाँ पर सर डिग्री की जरूरत हो। तो इसके संदर्भ में सर थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। देखिए बात क्या है, वो इसलिए रखी गई है, थोड़ा लचीलापन है उसमें, फ्लेक्सिबल रखा गया है उसमें। जी। पहले ये होता था कि BA किया, डिग्री लिया, चले गए। अब कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए पहले बच्चा जो है वो आर्ट्स में कर रहा है, दूसरे में साइंस में कुछ करना चाहता है, तीसरे में वो कोई सोशल मीडिया में जाना चाहता है, तो अब एक डिग्री तो उसको हो गई या एक ग्रेजुएशन तो उसको हो गया, साथ साथ जहां जहां जो डिमांड्स होंगी, अगर वहां पर एक डिप्लोमा काम कर देगा तो वो डिप्लोमा उसके लिए काफी होगा। अगर वो जॉब के लिए जाएगा तो वो डिग्री साथ दे देगी। अगर वो कोर्स के लिए जाएगा एक पर्टिकुलर फील्ड में जहां डिप्लोमा चाहिए, क्योंकि उसने उस कोर्स में डिग्री तो ली नहीं है फुल फ्लेजेड, लेकिन तब भी एक डिप्लोमा उसके पास, उसके बाद उसको लेके आगे जा सकते। तो जो मुझे समझ में आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक लचीला फ्लेक्सिबल कंपोजिट मैकेनिज्म है, जिसमें बच्चे की हर तरह की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की। मुझे ये समझ में आता है, हो सकता है इसके कुछ और बेटर डेफिनेशंस हो, शायद आपको कुछ वो लोग भी बता सकेंगे जो NEP रोज रोज पढ़ाते हैं, जानते हैं, पर मुझे यही लगा है कि वो हर तरह की चीजों को, बिकॉज मैंने NEP को पढ़ा था, NEP को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि एक कंपोजिट दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन सब चीजों को लिया जाए, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराई जाए, उनको जॉब
जॉब सीकर से उठा के जॉब गिवर्स बनाया जाए, जॉब देने वाले बनाया जाए। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ फ्लेक्सिबल भी रखना पड़ेगा। हर एक में अगर आप डिग्री 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 करते जाएंगे तो बच्चा कितनी डिग्री लेगा और कहाँ डिग्री मिलेगी उसको? तो कहीं डिप्लोमा से भी कवर्ड हो सकता है, जहां पर डिप्लोमा चल जाएगा, जहां डिग्री चल सकती है वो डिग्री संभाल देगी, जहां पर कोई छोटी सर्टिफिकेट चला सकती है मेरिट मेरिट की वो चला देगी। लेकिन हाँ, इसको अडेप्ट करने में समय लगेगा, ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनईपी का ये इंटेंशन था, इसलिए किया गया है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज जो है वो सरकारी दफ्तर हैं बहुत बड़े बड़े, अरे बेचारा आएगा स्टूडेंट, कहेगा अरे तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम जाओ, इस कोर्स में कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको डेवलप करने में थोड़ा समय लगेगा और होना भी चाहिए। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग। Sir, I Dr. Snehata from Lucknow. Sir, your lecture is very knowledgeable and सबसे पहली बात है कि हम लोगों को अभी ये एक और चीज समझ में आ रही है कि अपने बच्चों को हर एक इंसान की इम्पोर्टेंस समझाना है कि बड़ा ही है तो उसकी भी जरूरत है, अगर कोई वेंडर है तो उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में और शुरू से करना चाहिए। बट वो आपने बात की जॉब सीकर वाली, तो वो हम सब लोगों के माइंडसेट में है और जब भी अपनी क्लासेस में जाते हैं तो हम सिर्फ IAS PCS और बड़े बड़े पोस्ट की सपने दिखाते हैं उनको। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज आपने कहा कि जो आप कॉलेजेस में जिनके पास नॉलेज है वो क्लासेस ही नहीं ले रहे हैं, तो वो सेम थिंग हैपन विथ माय कॉलेज ऑल्सो। जितने भी सीनियर प्रोफेसर हैं जिनके पास नॉलेज है, वो मैं भी जब पढ़ती थी, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी, जो इनके बड़े बड़े नाम थे वो कभी क्लासेस में नहीं आते थे, उनके सर स्कॉलर आके पढ़ा के जाते थे। हम लोग साल भर उनका इंतजार करते थे कि कभी वो मुझे पढ़ाने आए। तो ये सारी चीजें तो हम लोग आए दिन फेस कर रहे हैं। बट हम लोग और कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि एवरी पर्सन और एवरी जॉब और एवरी फंडामेंटल थिंग्स इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो कैसे हम अपने, क्योंकि हम लोग का जो बच्चे हैं वो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग उनको कैसे और इनोवेटिव आइडियाज दें कि ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जॉब सीकर ना बने, बल्कि अपने करियर को और अच्छे से, यानी मैं तो खैर अपनी क्लासेस में यही बोलती हूँ कि जिस फील्ड में भी जाना हो उसमें बेहतर करो। अगर अच्छा कुक बनना चाहते हो तो अच्छा कुक ही बनो। तो लेकिन फिर भी उनको लगेगा कि ये कैसा टीचर है, ये कैसे बता रहा है कि खाना बनाना ही सीख लो। तो मैं और इसको कैसे रिफाइंड वे में अपने बच्चों को अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि नौकरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी ये है कि तुम एक अच्छा इंसान बनो और अपनी लाइफ में जो भी करो उसको बेहतर करो। अगर दर्जी बनना है तो अच्छा दर्जी बनो। तो और कैसे हम उसको अपने बच्चों को इंश्योर करें? स्नेहलता, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप चूंकि जानते हो कि जो मैंने भी फेस किया है कि टीचर्स नहीं आते थे यूनिवर्सिटी में, नहीं पढ़ा पाते थे हम लोग ने। अब देखिए क्या है, बच्चों को चाहे वो कितनों रूरल बैकग्राउंड से आए, मैंने देखा है दिल्ली में, मैंने डिसएडवांटेज बच्चों के साथ काम किया है 1 साल में। उनकी माइंड बहुत शार्प होता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उस शार्प माइंड को आप कैसे एंगेज करोगे? कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको ये बता दो कि हाँ भाई तुम IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फौज के कप्तान बन जाओ, क्योंकि वो यही सब देखते आ रहे हैं। फिल्म में उनको वही दिखता है कि अक्षय कुमार ऐसा था, शाहरुख खान ऐसा है, आमिर खान ऐसा है, तो वो बेचारे थोड़ा बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं। उनको ये भी दिखना चाहिए कि यहाँ हार्ट के डॉक्टर ऐसे ऐसे इंडिया में बने हैं जो इंसान की जिंदगी बचा लेते हैं। तो कभी कभी एक छोटा सा, पता नहीं आप लोगों ने वो इंसिडेंट सुना है, स्टोरी है कि एक बार काफी जंगल, यूरोप में कोई जगह थी, वहां बहुत बारिश तूफान आ रहा था और उसमें एक डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से जा रहे थे और वो डॉक्टर साहब रास्ता भटक गए। तो कहीं उनको सुझाई नहीं पड़ा, सामने एक छोटी सी कुटिया नजर आई जिसमें बस रोशनी जल रही थी। तो वहां पर गाड़ी से जैसे भी थे गाड़ी रोक के गए, नॉक किया तो एक लेडी ने दरवाजा खोला। तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-4 घंटे के लिए जगह मिल सकती है, मुझे किसी जगह पहुंचना है और ये तूफान आ गया है। उसने कहा बिल्कुल मिल सकती है, आगे तो कुछ खाने को मिलेगा। तो कुछ खाने को था नहीं, एक गिलास दूध ला के दे दिया। तो डॉक्टर साहब ने दूध पिया और चले गए, हो गई बात खत्म। 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद वो लेडी क्रिटिकली, मतलब वो हो गई, कोई ऐसी बीमारी इसको हो गई जिसको केवल एक ही डॉक्टर बचा सकता था। कोई हार्ट की ऐसी डिजीज हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने गई। तो हॉस्पिटल का खर्चा देख के वो घबरा सी गई। तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर अभी आएंगे, देखेंगे,
और जैसा वो कहेंगे आपका खर्चा कम हो जाएगा या कुछ है, लेकिन आपकी जान बचानी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, वो कर देंगे। डॉक्टर आए, वो ऑपरेशन थिएटर से निकल के आए, मास्क लगा के आए हुए थे। उन्होंने एक नजर सिर्फ लेडी को देखा, उन्होंने कहा इनका ऑपरेशन मैं करूंगा, और ओटी में चली गई, ऑपरेशन हो गया, बच गई। अब जब सुबह हुई तो उसने कहा कि बिल कितना है, मैं पैसा तो दे नहीं सकती, ये तो बहुत मैसिव बिल होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा डॉक्टर। तो कहा गया कि आपका बिल किनारे रखा हुआ है, एक गिलास दूध रखा हुआ था। He repaid it with a glass of milk. ऐसे लोग भी तो हैं भाई, ऐसे बच्चों को कहानियां तो सुनाइए। खाली फिल्म एक्टर्स और ये देख के क्या मिलेगा? देयर आर लेजेंड्स, लिटरेचर, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, सोशल साइंटिस्ट, रिफॉर्मर्स। इंटरेस्ट पैदा कीजिए, टेल देम स्टोरीज। मैं हमेशा मानता हूं द बेस्ट वे टू टीच इज टू टेल ए स्टोरी। आप स्टोरी सुनाएंगे ना तो उसकी जिज्ञासा जगेगी, उसका इंटरेस्ट बनेगा। आपकी एकेडमिक लीडरशिप की सबसे बड़ी पहचान है हाउ गुड ए स्टोरी टेलर यू आर, मेरे दिमाग में तो यही। और जो आदमी ये समझ ले कि हाँ भाई एक चीज है जिससे आप बच्चों की क्यूरियोसिटी ढूंढ सकते हो, हिम्मत जगा सकते हो, तो वो ऐसी ऐसी कुछ कहानियां हैं। प्लस वो वर्ल्ड पर एक्सपोज्ड है, उनको कंप्यूटर्स पर ले आइए, दिखाइए भाई पायलट बनना है तो ये करना है, डॉक्टर बनना है तो ये करना है, किस लाइन में जाना है, अमेरिका जाके पढ़ना है, क्या पता कल वो अमेरिका जाके पढ़े, स्कॉलरशिप मिल जाए उनको। आज के दिन वो अंडर प्रिविलेज जरूर है, हो सकता है 10-12 साल के बाद वो यूएस में ह्यूस्टन में पढ़ रहे होंगे स्कॉलरशिप पे। ये जैसे जैसे समय आ रहा है दुनिया छोटी होती जा रही है, एडुकेशन फैलता है, और एडुकेशन इज द की। एडुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा जोड़े रखेगी, आपको हमेशा जवान रखेगी, जिंदा रखेगी, कोई दूसरी चीज नहीं रखेगी। इट विल बी एजुकेशन, दैट्स व्हाट आई थिंक। यस यस सर, ये हम लोग अपने रिसोर्सेज के रोना रोते रहते हैं, ये हम लोग अपने खुद भी चाहे तो एग्जांपल सेट कर सकते हैं। मेरे कॉलेज का एक वाकया है, हम लोग जब न्यूली रिक्रूट होके गए थे तो उसके पहले कोई क्लासेस नहीं होती थी और बच्चे कभी आते नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक सेट पैटर्न बन गया था कि यहाँ पे तो कोई क्लासेस ही नहीं होती हैं, क्योंकि 2 ही 3 फैकल्टी थी और वो अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, उनको क्लासेस से कोई मतलब नहीं था। और मेरा कॉलेज एक बहुत रिनाउंड कॉलेज था, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पे बच्चे आना बिल्कुल बंद हो गए। एक टाइम था कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को लगना पड़ता था एडमिशन कराने के लिए, और आज के डेट में ये है कि बच्चे आना ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि यहाँ तो क्लासेस ही नहीं होती तो मैं दूर से क्यों जाऊँ, मेरे फादर एक वेंडर हैं और वो कैसे मुझे वहाँ रोज रोज भेज पाएंगे। तो जब हम लोग वहाँ पे रिक्रूट हुए तो हम लोगों ने अपनी क्लासेस रेगुलरली लेना शुरू किया और एक अवेयरनेस करा कि हम लोग सब लोग आए हैं अच्छी अच्छी जगह से पढ़ के, और यहाँ पे प्रॉपर फैकल्टीज हो चुकी है, बच्चे आए और उनकी क्लासेस होंगी। तो हम लोगों ने फिर देखा कि एक चेंज आया कि क्लासेस भी हो रही है और जो सीनियर प्रोफेसर कभी नहीं जाते थे क्लास में वो अब क्लासेस लेने लगे हैं। तो मतलब एक नया चेंज देखने को मिला है। तो वो हम लोग खुद भी चाहे तो अपने अपने लेवल पे सेट कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने रिसोर्सेज का रोना रो के ये कह नहीं सकते हैं कि पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो टांग खींच दी जाती है या हमारे यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, क्लासेस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग खुद भी कर सकते हैं। आपसे ये चीज हम लोगों को सीखने को मिला है कि हम लोग भी अपने अपने लेवल पे एग्जाम्पल सेट करके अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। आप लोगों को इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, अच्छा काम कर रहे हो। आज नहीं तो कल दुनिया मानेगी, बच्चे याद रखेंगे जो कल होके बड़े होंगे, वो भी आपको एक गिलास दूध के साथ वापस कर देंगे बहुत सारी चीजें। तो ऐसी दुनिया बनाइए जिसमें बच्चे भी खुश हों, एक्नॉलेज भी करें और याद भी रखें। तो होना ही चाहिए। बहुत सही आपने कहा है, बहुत सही कहा है। एनीबॉडी एल्स? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। I am Harguru Pratap Singh from Government College Malerkotla, पंजाब। सर, आपने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन की एकेडमिक्स में, तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि जो एकेडमिक्स हैं इसको दो तरह से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो जो लोअर लेवल पे है, जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, अप टू वाइस चांसलर से थोड़ा लोअर लेवल पे जो रहते हैं एकेडमिशियंस रहते हैं। बाकी ऊपर जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि जैसे आपने अपने लेक्चर में बताया भी, कई बार ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर की पोस्ट दे दी जाती है, कई बार किसी पॉलिटिशियन को वाइस चांसलर की पोस्ट मिल जाती है। तो इसमें एक गैप रहता है। पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यूजीसी के नॉर्म्स है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कई बार गैप देखा गया है। ब्यूरोक्रेट्स वो समझ नहीं पाते जो
एकेडमिकली क्या होना चाहिए? कई बार इसमें दिक्कत आती है, पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यूजीसी की रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? बहुत सही, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं टोटली 100% एग्री करता हूँ आपकी बातों से। होता क्या है, अब तो आप लोगों को माहौल बहुत बेटर मिल रहा है। जब हम लोग बड़े हुए, एमए किया, बीए किया, मैट्रिक किया, जिस जगह से हम लोग आते थे, पंजाब तो बहुत आगे रहा है। मैं पंजाब में पोस्टेड रहा हूँ, मैं मलेरकोटला गया, बहुत अच्छी, कहाँ से कहाँ लोग यूनिवर्सिटीज को लेके गए, एक से एक। तो उस वक्त की जो परेशानियां थी ना, वो एजुकेशन से बियॉन्ड होती थी। अभी भी शायद थोड़ी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, चोरी, मतलब कॉपी का प्रॉब्लम, डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, करप्शन इफ यू कैन कॉल इट। अब उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ये समझती रही है पहले से भी, अभी भी, कि एक आईएएस अफसर, एक ब्यूरोक्रेट ज्यादा सक्षम होता भी है। लेकिन जिस वक्त ये चीज खत्म हो गई, ये चीज परमानेंटली नहीं रहेगी, ये 2 साल 1 साल के लिए आएगा, वो ठीक करके चल, उसके बाद क्या होता है, वो कंटिन्यू कर जाते हैं। कंटिन्यूएशन गलत है, बिकॉज कंटिन्यूएशन में एकेडमिक ग्रोथ नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, एकेडमिक ग्रोथ एक एकेडमिक ही करा पाएगा। जो एकेडमिक उस लेवल का वाइस चांसलर होगा या जो प्रिंसिपल होगा, जो पढ़ने पढ़ाने वाला, बिकॉज ओरिएंटेशन बहुत डिफरेंट है। हम लोग मिलते हैं रोज, हमारे यहाँ प्रोफेसर आते हैं, हमारे यहाँ एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी आते हैं, दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क। एक जो होता है वो पिटे पिटाए ईगो वाले बात पे चलता है, दूसरा कहता है नहीं भाई एजुकेशन है, हर चीज को देखो, हर चीज को समझो। क्यों नहीं समझोगे? आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं 100% एग्री करता हूं। सिर्फ ये है, अगर गवर्नमेंट ने किसी कारणवश कोई मजबूरी के तहत किसी ब्यूरोक्रेट को कुछ दिन के लिए लगाया है, तो उतने ही समय के लिए लगाया जाए जब तक वो परेशानी दूर हो जाए। 1 साल, 2 साल, 2.5 साल। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, डिसिप्लिन लाना है, पुलिस के साथ मिलकर कैंपस को ठीक करना है, उसके तुरंत बाद उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए टू एकेडमिक ऑफिस, और उसको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई अब आप ये लो, अब आप चलाओ। वो बहुत अच्छा चला है। पर अक्सर ये सर होता नहीं है। जब कोई ब्यूरोक्रेट किसी पोस्ट पे आ जाता तो छोड़ना नहीं चाहता। यह मैं बोलना चाह रहा था, होता यही है कि वो फिर लालच आ जाती है, अरे भाई हम वाइस चांसलर बन गए, हमें गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, हमें फॉरेन टूर, ये सब मिल गया। अब आपको मैं पंजाब का एग्जांपल देता हूँ, ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल। मैं रहा हूँ ब्यूरोक्रेट में, अमृतसर में पोस्टेड था, अटारी बॉर्डर मेरे चार्ज में था, मैं जाता था अक्सर। पंजाब पाकिस्तान से उल्टी सीधी हरकतें होती थी, उसको रोका है। केपीएस गिल साहब बने डीजी पंजाब। केपीएस गिल साहब से मैं मिला, उनकी जब डेथ हुई थी तो मैं गया भी था, उनके अपनी बेटी को लेके गया था मैं उनकी अबिचुअरी में, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं कस्टम सेवा का था, आईआरएस था। हमारी एकेडमी बन रही थी फरीदाबाद में, बहुत अच्छी एकेडमी बनी 29 एकड़ में। उस एकेडमी का इनॉग्रेशन करने के लिए लोगों ने कहा कि किसी ऐसे आदमी का नाम बताया जाए जो कर सके, तो लोगों ने अलग अलग नाम बताए। मैंने केपीएस गिल साहब का नाम प्रपोज किया। तो हमारे कस्टम वाले कहते हैं, अरे तुम कैसे आदमी हो, अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के तुम एक पुलिस ऑफिसर को बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, ऐसी क्या चीज है? वो पंजाब को ठीक करके आए, यहाँ एकेडमी से क्या लेना देना? हम कहा साहब लेना देना है, सिर्फ एक चीज के लिए लेना देना। आपके यहाँ प्रोबेशनर्स आ रहे हैं, उनको क्या सिखाएंगे आप? लीडरशिप। और मेरे हिसाब से लीडरशिप में गिल साहब से बढ़िया लीडरशिप बताने वाला आज के दिन हिंदुस्तान में कोई नहीं। तो क्या उन्होंने कहा कि वो आएंगे नहीं? मैंने कहा चलिए, मैंने इनवाइट किया, वो आए। और जब वो एंटर करने लगे तो उन्होंने पहला, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी थी साहब, बड़ी जबरदस्त, मैं उनसे मिला हूँ। जब वो एंटर करने लगे तो उन्होंने पहले सवाल पूछा कि हु इज दिस मिस्टर अख्तर हु हैज इनवाइटेड मी। तो मैं बहुत सीनियर नहीं था, आई वाज मिडिल ऑर्डर ब्यूरोक्रेट। तो मैं आगे गया, मैंने कहा सर आई एम अख्तर, हाथ मिलाया। तो कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुछ लगा मुझे कुछ लिटरेरी टाइप के आदमी हो। तो मैंने कहा सर मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर में हूँ और ये सर्विस। उन्होंने कहा आई एम ऑल्सो एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। इकबाल की पोइट्री पे बात करते हैं, और वहां से बात शुरू। ऐसे ब्यूरोक्रेट भी हैं, बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेट में लालच नहीं होता, आगे भी रहे। आपका पॉइंट सही है, जैसे ही वो खत्म हो उनको हट जाना चाहिए या उनको हटा देना चाहिए।
और एक एकेडमिक को बना देना चाहिए। जहाँ सर मेरे ख्याल में एक एनईपी तो लागू की गई है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी चाहिए था भी अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स लगाना भी है तो वो डॉक्टरेट हो या कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स लगाने चाहिए जो लर्नड हो, एकेडमिकली ओरिएंटेड हो। करेक्ट 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 करेक्ट। जिनका एकेडमिक इंक्लिनेशन हो, जिनको Yes, sir. पढ़ाई से लगाव हो, जो उस जगह की इम्पोर्टेंस को समझते हो, उन्हीं को Yes, लगाना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। Sir, my question. I am Shailesh Kumar Prajapati, SBM PG कॉलेज कुशीनगर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आप चूंकि प्रशासक रहे हैं तो जो लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है सर, लेटरल एंट्री का, तो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग लिए जा रहे हैं, तो जो पॉलिसी मेकिंग है सर उसमें कहाँ तक ये सही है उनका रोल? देखिए, इसके प्लस और माइनस दोनों चीज है। पहले प्लस क्यों है कि आपने सिविल सर्विस को एक डब्बा बना के रखा, हम लोग सब उसी डब्बे में बनते हैं, वही डब्बा चलता गया, IAS, IRS, IPS, IFS। अब वो ईगो में अपने उसमें मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो फ्रेश विंड आनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नई व्यूज आने चाहिए, वो नहीं आए। कुछ में आए हैं, सब में नहीं आए। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि जब पॉलिसी मेकिंग होती है, अब एक IAS अफसर को जो पोस्टल सर्विस का है उसको अपने कल्चर में बना दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर, वो कल्चर को समझने में उसको 2 साल लग जाएंगे, वो काम क्या करेगा। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि भाई उस लाइन के कुछ लोगों को लाया जाए जो लेटरल एंट्री होती है, और उनको कम से कम मिडिल मैनेजमेंट से थोड़ा ऊपर रखा जाए, तो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाए, इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हो जाए, विच इज नॉट अ बैड आइडिया। प्रॉब्लम लाइज वेयर कि आपके पास सिस्टम नहीं है उसका। या तो आप यूपीएससी में भी कुछ ऐसी सीटें मुकर्रर कर देते कि 20 सीटें हैं जो बाहर वाले आएंगे और इस मेथड से आएंगे। अब हुआ ये कि जब ये आने लगे ना, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो थ्रेटन फील करने लगे कि अरे ये कहाँ से आ गए भाई, ये आकर के पता नहीं क्या करेंगे, तो हमारा पोजीशन ले लेंगे, हमारी ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। और ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसकी जो प्रिविलेज है वो ना चली जाए उसके हाथ से, वो उसको पकड़ के रखना चाहता है। सच्चाई यही है, हम लोग भी वही थे। तो लेटरल एंट्री के प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। गवर्नमेंट अभी भी ला सकती है, बट उसको एक तरीके से लाना पड़ेगा, एक सिस्टम बना करके, यूपीएससी से, पार्लियामेंट से पास करा के साहब 25 लोग आएंगे और ये पारदर्शी एग्जाम होगा, इससे वो लाएंगे, और इससे किसी दूसरे अफसर के इस पे कोई नुकसान नहीं। देयर इज स्टिल टाइम एंड इट्स अ गुड आइडिया, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। थैंक यू सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं मयंक त्रिवेदी सर, जी बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी से। सर बहुत शानदार लेक्चर रहा आपका, बहुत प्रेरणादायक रहा है। बहुत सी नई चीजें आज अनुभूत हुई हैं जिन्हें शायद भविष्य में हम लोग लागू कर पाए अपने कार्य क्षेत्र में। तो सर जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, आपने कहा कि बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमें उन कमियों को सोचते हुए उनसे पॉजिटिव चीजें निकालनी, जैसे आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की या आपने कई सारी और पॉजिटिव चीजों की बात की। तो सर मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग एनईपी के साथ ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। एनईपी इतनी जल्दी हटाने वाला कोई नहीं है। तो सर बहुत से सेशंस होते रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक कंपलसरी सेशंस होने चाहिए टीचर्स के लिए कि इस पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें? क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर्स में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और निगेटिविटी ज्यादा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के। तो कंपलसरी ट्रेनिंग्स अगर हो जाए आप जैसे महानुभावों के द्वारा, अगर इसी प्रकार से प्रेरित समय समय पे किया जाए, तो क्या सर आपको लगता है कि जो वर्तमान परिदृश्य है वो बदलेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे? बहुत बहुत अच्छा आपका सजेशन है त्रिवेदी साहब, बधाई हो कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसलिए कि 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है, जब इतनी मेहनत करके 2020 में एक नई शिक्षा नीति बनाई गई है, तो क्या वो इसीलिए बनाई गई कि हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे पहले दिन से कि इसमें ये नहीं है, लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, फलाना नहीं है? अरे यार पहले पढ़ तो लो, उसमें क्या अच्छाइयां हैं। मैंने पढ़ी है थोड़ी सी, मैं पूरी तरह नहीं पढ़ पाया, थोड़ा सा। मुझे कई चीज बहुत अच्छी लगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात। इसमें क्या खराबी है मुझे बताइए? कोई खराबी नहीं। तो आपका कहना सही है, ओरिएंटेशन कोर्सेज करने चाहिए। कंपलसरी वर्ड मत यूज कीजिए, वो थोड़ा सा
बहुत मजबूत हो जाएगा ज्यादा। आप कहिए ओरिएंटेशन करा दीजिए, साल में 3 ओरिएंटेशन बल्कि क्वार्टरली कराइए, और उसके लिए अच्छे स्पीकर्स को लाइए। वो एनईपी पर पॉजिटिव देखिए, कोई भी पहलू को समझाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक उसकी अच्छाई बयान कीजिए, एक उसकी बुराई बयान करके उसको खत्म कर दीजिए। तो एक मिडिल रास्ता भी होता है। हाँ भाई ठीक है, थोड़ी कमियां हैं वो देख लेंगे, उसको भी दूर करें, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उसको तो अडॉप्ट करो भाई, क्यों छोड़ रहे हो उसको? इतनी मेहनत से एनईपी बनाई गई है, इसलिए थोड़ी बनाई गई है कि उसको हम आउटराइट रिजेक्ट करते हैं और उसके ऊपर नारे लगाने लगे हैं। मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए थे कि साहब एक हम वो छेड़ रहे हैं, एक पता नहीं क्या मुहिम बना रहे हैं कि इसके खिलाफ बात करें। मैंने कहा यार मुझे इससे दूर रखो, मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया, और क्यों मुहिम छेड़ रहे हो यार? जब अच्छी चीजें हैं उसको अडॉप्ट करने की जगह पहले ही से मुहिम चला रहे हो तुम उसके खिलाफ। तो मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ओरिएंटेशन कराइए, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है। आज के दिन किसी भी कोर्स को आप देख लो जो वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग ही उसका मेन चीज है। तो उसको लाइए, उसकी ओरिएंटेशन में एनईपी को लाइए। वाइस चांसलर को रिक्वेस्ट की जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और भी जगह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी से मैं मिला हूँ हाल में, बहुत अच्छे आदमी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे ले जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को। इन लोगों को मिलकर एक थिंक टैंक बना के साहब एनईपी को सारे टीचर्स को बुला के ओरिएंटेशन, बहुत अच्छा आइडिया। सर मैंने इस संदर्भ में कहा क्योंकि हम लोग सर पढ़ने पढ़ाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि इस प्रकार से सेशन या इस प्रकार से नई थिंकिंग हम लोग शायद नहीं सोचते हैं। जैसे सर ये हमारे लिए कंपलसरी है कि एफआईपी करना है, तो हम आकर के हमने एफआईपी की, तब आप जैसे और सर बहुत अच्छे क्लासेस हम लोगों को सुनने को मिले हैं और बहुत सी मेंटेलिटी हम लोगों की चेंज हुई है। तो सर ये कंपलसरी हुआ तभी हम यहाँ आकर के आपको सुन पा रहे हैं। तो मेरा सर नेगेटिव सेंस नहीं था, मेरा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार से सर शामिल हों, उसको समझने का प्रयास करें। कुल मिला के बात ये है कि एग्जैक्टली हम लोगों को इसके बारे में भी बहुत ज्यादा चीजें पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो बहुत कंफ्यूजन है हम लोगों में, टीचर्स के बीच में भी है, स्टूडेंट के बीच में भी है, मेजर माइनर एंड ऑल दिस थिंग्स कैसे करना है, तो बहुत सारे अभी भी क्लियर नहीं है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम लोगों को और भी ट्रेनिंग्स की जरूरत है। और सर आपकी बात से एक पंजाब के केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति जी हैं, उन्होंने बहुत छोटा सा हम लोगों को बताया था, उसी वो याद आ गई सर जिस प्रकार से आपने प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि दादाजी समुद्र के किनारे छोटे छोटे जीवों को बार बार लहरों से जो आ जा रहे थे, उनको लहरों को वापस उन जीवों को समुद्र में डाल रहे थे। तो उनके पोते ने पूछा कि दादाजी आप रोज ये करते हो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये छोटे छोटे जीवों को इतने कितने आप जीव को कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा इससे कितने जीवों को फर्क पड़ जाएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस जीव को हम समुद्र में वापस फेंक रहे हैं, वापस उसके ले जा रहे हैं, उसके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। तो सर हम जिस विद्यार्थी के लिए हम बदलने का प्रयास, अगर हम 4 विद्यार्थियों को भी बदल ले जाएं तो मुझे लगता है कि सर बहुत बड़ी बात होगी हमारे करियर के लिए, हमारे अनुभूति के लिए, हमारे आगे करने के लिए। तो सर बहुत अच्छा, आपकी बातें से बहुत हमें प्रेरणा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना शानदार लेक्चर देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ देखिए, बात यह है कि आप लोगों को आगे जाना है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हर चीज की, चाहे एनईपी हो चाहे कुछ हो, पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिवली किसी चीज को मत लीजिए। नेगेटिवली लेंगे तो फिर आप उसी कुएं के मेढक में फंस जाएंगे। बुरा मत मानिएगा कि उसके आगे नहीं सोच पाएंगे। आपको वर्ल्ड थिंकर्स बनने हैं, यूनिवर्सल थिंकिंग लानी है, आपको कंबाइन होना है। जो दुनिया की बेस्ट फोर्सेस हैं हर जगह है, हर जगह से अच्छाइयां मिलती हैं, हर जगह से बुराइयां खाली नहीं मिलती हैं। उन अच्छाइयों को जोड़िए और एक कंपोजिट कल्चर, एक कंपोजिट पॉलिसी पर चलिए, मेरे ख्याल से कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। और कोई अगर है बोलना चाहे, अभी 2-3 मिनट का समय है। Good morning, sir. Good morning. Yes, Mr. Das, Dr. Das, tell me. Morning, sir. Thank you for such a wonderful lecture. My question is a little bit different, sir. You talked about the role of lateral entry in civil services. But, sir, there are certain official secrets. Don't you think that it will have a threat to the national security if this lateral entry will be encouraged in the civil service? Because there are certain things, Official Secrets Act we have. Let me tell you, I have worked in the government and I have been privy to many of the secrets, not only in India, outside India also, protecting our interests, national interests. Many, I can't share it on this platform, I'm sorry, but I was privy. Now, if you induct certain persons through the lateral entry,
you will have to give them a training. You cannot just make them enter and next day you hand over a file and say, "Chalo, is pe kaam shuru kar do." You can't do that. You first of all, there has to be a method in the madness. You induct them, you train them, you tell them, look here, now in the course of your day-to-day activities, you will be coming across certain things which you will be privy to. How are we privy to it? Because they have been told. So they are no different. They can be told, guided, tutored, mentored, then brought to the table, then brought to a level of thinking which will make them not only confident, also they will be having integrity to protect those interests and to go ahead. But let them come. Just because there are secrets, they should not come. I'm sorry, I don't like it. Those secrets have been there since ages. They will be there again in the days to come. Let people come and go. And the best mind should prevail. That's all I'm trying to say. There is no harm. But there should be a method. You cannot just induct it arbitrarily and go ahead with it. That is not done. You find a good way, method, how to induct them, how to train them, how to orient them, and then take it forward. What is the harm? सर एक चीज डाउट है कि मान लीजिए सर कोई उसी माइंडसेट के साथ आ रहा है, तो पॉलिसी में अगर अपने मूल्यों को डाल रहा है अपनी सुविधा के अनुसार, इसको आदमी कैसे रोक पाएगा? वो पहले से माइंडसेट करके ट्रेनिंग भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, फिर भी वो जो चाहता है अगर पॉलिसी में अपने मूल्यों को डाल रहा है तो इसको कैसे रोका जा सकता है? मुझे एक चीज बताइए, जो लोग सिविल सर्विस कंप्लीट करके आ रहे हैं, क्या वो लोग ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं आ सकते हैं? अगर वो लोग आ सकते हैं तो इनके आने में क्या नुकसान? आप 100, 150, 1000, 900 लोगों को सिविल सर्विस एग्जाम करा करके लाता है, आप सबका माइंडसेट चेक करते हैं क्या? पता है आपको कि उसके दिमाग में क्या है, क्या करेगा वो यहाँ के? फिर आपकी ट्रेनिंग फर्क लाती है ना, आपका ओरिएंटेशन फर्क लाता है ना, उनको भी तो मौका दीजिए। अगर वो माइंडसेट लेके भी आ रहे हैं, हो सकता है कि वो जब काम देखें, ट्रेनिंग देखें, जब उनको लगे कि साहब इससे कितने लोगों का फायदा होने जा रहा है इस स्कीम से, वो माइंडसेट उनका चेंज हो जाए। मौका तो दीजिए उसको। ये क्यों मान के चलें कि वो एक माइंडसेट लेके आ रहा है और वो कौन सा इतना बड़ा कमांडर इन चीफ होके आ रहा है कि एक लाइन लिख देगा तो पूरे भारत का संविधान बदल देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। बट गिव हिम द चांस, गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इन फ्रेश एयर टू द रूम। अगर वो वाटर रिसोर्सेज का एक्सपर्ट है, अगर वो मेडिकल का एक्सपर्ट है, अगर हम लोग वो काम नहीं कर सके हैं, लेट हिम कम एंड कॉम्प्लीमेंट, लेट हिम कम एंड हेल्प अस, सपोर्ट अस टू टेक इट फॉरवर्ड। देयर इज नो हार्म। अमेरिका में आप देखिए ना, एक प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनता है, वहां तो कोई सिविल सर्विस नहीं चलती, और वो जो चुन के लाता है अपने सेक्रेटेरिएट को, उसमें आधे से ज्यादा साइंटिस्ट और प्रोफेसर को भर देता है, कोई सिविल सर्वेंट नहीं आता वहां। फिर क्या अमेरिका के सीक्रेट कभी डाइवल्ज हुआ या अमेरिका का नुकसान हुआ? नहीं होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा तरीके से चलिए, सब कुछ होगा। वो एक है ना वसीम बरेलवी, पता नहीं आप लोग को शायरी का शौक है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा है। वसीम बरेलवी शायर है यूपी के, तो उनका एक शेर है जो मैं अक्सर सुनता हूँ और बोलता हूँ, कोई भी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, कोई भी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो अगर, ये सलीका हो अगर, हर बात सुनी जाती है। वाह वाह सर, वाह वाह। सर बहुत ही मोटिवेटिंग सेशन रहा आज का सर। हम लोग ईश्वर से कामना करेंगे कि सर आपसे फिर से एक बार मुखातिब हो सर। I am there anytime, anytime. सर प्लीज शेयर कॉन्टेक्ट डिटेल सर। मैं अपना नंबर शेयर करूं आपके साथ? जी 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 यस जी जी 98100 जी ग्रुप में डाल दीजिएगा। 98100 जी 77260। बंद कर दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हम लोग का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सर। आज हम लोग थैंक यू सर, आज हम लोग बहुत चीजें सीखे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आपके लेक्चर से सर हृदय भर गया।
चलिए, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि भाई आप लोग को थोड़ा अच्छा लग गया। मैं तो कोई प्रोफेसर हूँ नहीं भाई, कभी बहुत पहले होता था, बाद में सिविल सर्वेंट हो गया, मुझे लगा सारी चीजें भूल भाल गया होगा, पर कुछ तो थोड़ा बहुत शेयर कर सर सारे कुछ प्रोफेसर ही नहीं जानते, आप लोग भी जानते हैं। सर आप लोग में ज्यादा विविधता होती है, नहीं ऐसा क्योंकि नहीं, बहुत सारे टास्क हर तरह के अच्छे लोग होते हैं, हर तरह के। मैंने अभी सर क्या हम लोग कहा, विषय विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन सर प्रैक्टिकली चीजें हम लोग को नहीं आती है जो आपके पास होती है। कोई बात नहीं, हम हमेशा तैयार हैं, जो हम छोटी मोटी चीजें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।